Very good morning, dear students. This is Durgesh Kumar Pandey, your SST teacher. Students, in my previous class, I had discussed about the Tawa Matsya Sangh. Tawa is a river which is originated from the Mahadev Hills and drawn in Narmada rivers near the Hosangabad district, Madhya Pradesh. Students, in that topics we had seen how the peoples fought for their rights. According to our Indian Constitution, Article 12 to 35 describes the fundamental rights of human beings. Under this articles, right to life. In right to life is also right to living. How can a people live without the earning of money? अगर किसी भी व्यक्ति को जीना है, राइट टू लाइफ, अगर जीवन जीने का अधिकार हमारा संविधान हमको देता है, तो जीवन जीने के लिए हमको अर्न करना पड़ेगा, और जो अर्निंग का मीडियम है वही सारी चीजें हमने तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ा। तवा मत्स्य संघ के बारे में हम लोगों ने देखा कि जब तवा डैम बना तो जो लिवलीहुड था, जो राइट टू लिवलीहुड था, लिवलीहुड लोगों का चला गया। जो वहाँ के लोकल्स थे उनका लिवलीहुड चला गया। जब लिवलीहुड उनके पास से चला गया तो उन्होंने उसके अगेंस्ट में स्ट्रगल करा। स्ट्रगल करके आखिर में उन लोगों ने अपनी राइट्स को पाया। कब पाया? ऑन 2 जनवरी 1997। 2 January 1997. Students, today I am going to discuss with you all the last topic of this chapter. The chapter name is Struggle for Equality, and the topic which I am going to discuss with you all, the Indian Constitution as a living document. This is the topic which I am going to discuss with you all. Students, how can we recognize that our constitutions are living or non-living organisms? If we are going to recognize a person, then first we will ask to him that where is your Aadhaar card, where is your PAN card, where is your driving license, where is your passports. On these records we can recognize a person. But how can we recognize our constitution? A constitution of a country is the total recognition of their countries. So we can recognize our constitution that on the basis of their equality. In our Indian constitution, each and every persons are equal before the law, although he is rich or poor, he Hindu or Muslims, males or females, neither. Each and every individuals are equal according to our Indian constitution, and this is the recognition of our constitution also. Students, according to our Indian constitution, if we are going to discuss about its living documents, then first we will find all the movements and struggles for equality. All the movements and struggles for equality in India continuously refers to the Indian Constitution. All the movements and struggles for equality in India continuously refers to the continuously refers to the Indian Constitution to make to the Indian
constitution to make their point about equality, their point about equality and justice, about equality and justice for all. This is the real recognition of our Indian Constitution. All the movements and struggles for equality in India continuously refers to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all. This is the recognition of our Indian Constitution. अगर हमको अपने भारतीय संविधान की व्याख्या करनी है तो जितने भी मूवमेंट, जितने भी आंदोलन होते हैं, जितने भी संघर्ष होते हैं, किसके लिए? फॉर इक्वालिटी। जितने भी समानता के लिए जितने भी संघर्ष होते हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं, ये लगातार चलते रहते हैं। इन इंडिया कॉन्टिन्यूसली रिफर्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब हमारे जो समानता का अधिकार है हमारे कानून, हमारे संविधान में जो राइट टू इक्वलिटी है, सभी व्यक्तियों के लिए जो समान अधिकार है, उसी के तहत ये अधिकार इनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। समानता के अधिकार के तहत ये सारे अधिकार प्रोवाइड, चाहे वो मूवमेंट्स के बारे में हो, चाहे वो स्ट्रगल्स के बारे में हो, जो ये राइट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स को, वो राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हाउ कैन वी डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट इन समथिंग दैट हैज रियल मीनिंग इन आवर लाइफ? ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, if we do not have equality in our society, then how can we recognize ourselves before anyone? किसी के सामने अगर हमको किसी एक दूसरे के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करी जाए, किसी के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करी जाए, तो जाहिर सी बात है उस समाज में हम अपने आप को ऊपर उठाकर नहीं देख सकते। हम उसी समाज में जाना पसंद करेंगे जहां पर सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। सपोज करिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लिविंग इन अ फैमिली, और देखिए जाए ड्यूरिंग द डिनर टाइम, अगर डिनर का टाइम हो और उसी समय सबको थाली में दिया जाए खाना और आपको कहीं पर वहीं पर पत्तल में दिया जाए, केले के पत्ते पर दिया जाए, और आप लोग टेबल पर बैठ के खा रहे हों और आप नीचे जमीन पर बैठ के खा रहे हों, हाउ कैन यू फील? व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू हैव ड्यूरिंग दैट टाइम्स? उस टाइम आपकी जो फीलिंग्स होगी, जो एक्सप्रेशन होगा, वो कैसा होगा? आपको यही लगेगा। और सबके साथ, सबके प्लेट्स में 2 वेराइटीज की सब्जी हो और आपके पास जो बचा खुचा हुआ हो वो डाला गया हो, आपके पास, आपके प्लेट में हो। लोगों की दाल में घी पड़ा हो, आपके दाल में, आपके बाद जो दाल हो उसमें भी पानी की मात्रा ज्यादा हो, तो आपको उस समय कैसा लगेगा? तो जहां पर जिस भी सोसाइटी में अगर हम देखें कि जब तक हमें समानता के भाव से नहीं देखा जाए, जब तक हमें हमारे साथ समान व्यवहार ना किया जाए, अगर कहीं पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आर्टिकल 12 to 35 है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं हम सभी को, उसके तहत जो राइट टू इक्वलिटी है, जो राइट टू इक्वलिटी है, जो समानता का अधिकार है, उसका हनन होता दिखता है। और अगर हमारे राइट्स का हनन दिखता है तो हमें ये अधिकार मिलता है कि हम उसके अगेंस्ट मूवमेंट करें। अगर किसी प्रकार के राइट्स का हमारे पास हनन होगा, हमारा हनन होगा, तो हमारे पास, हमारे संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि हम उसके विरोध में आवाज उठाएं।
आप सभी लोगों ने अभी देखा था फार्मर्स प्रोटेस्ट को देखा, आप सभी लोगों ने अभी स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को देखा, आप सभी लोगों ने अभी रोज के रोज देख रहे हैं, आए दिनों में देख रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि हम हमारे पास रोजगार नहीं है, लोग एम्प्लॉयमेंट के प्रोसेस के लिए वो लड़ रहे हैं। किसके लिए? वो उनका राइट्स है, मूवमेंट करना उनका राइट्स है, अपने राइट्स के लिए करें। लेकिन ध्यान रहे, हमें अपने राइट्स को तभी मानना चाहिए, जब हमें अपने राइट्स का मिलने का अधिकार तभी होना चाहिए जब हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करें। Our Indian Constitution's Article 12 to 35 describes about the fundamental rights, but Article 51A provides the fundamental duties. There are only 6 fundamental rights that we have, but there are 11 fundamental duties that we are going to follow. If we will follow the 11 fundamental duties, then we have a right to ask for our rights. 6 राइट्स। अगर हम अपने 11 मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे तब कहीं हमको ये अधिकार होगा कि हम अपने लिए 6 मूल अधिकारों की मांग कर सकें। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऐसा नहीं है कि हम अपने अधिकारों के लिए किसी दूसरे का अधिकारों का हनन करें। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स प्रोवाइड करवाए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए हैं, तो दूसरे व्यक्ति को भी 6 फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करवाया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास राइट्स हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, तो हम अपने हाथ में एक स्टिक ले लें और पूरा घुमाते हुए चलें। अगर हम घुमाते हुए चलेंगे तो क्या होगा कि किसी दूसरे को लगेगा जितने राइट्स हमको हैं उतने राइट्स उस व्यक्ति को भी है, तो वो भी घुमाए, सब एक दूसरे से घुमाए तो सब एक दूसरे से चोट खा जाए, तो इसका क्या मतलब है? तो हमें क्या करना है कि अपने राइट्स को मांगने के लिए दूसरे के राइट्स का भी एक्सप्लॉइटेशन हमको नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरे के राइट्स को एक्सप्लॉइट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपने लिए भी राइट्स की डिमांड नहीं रख सकते। अगर हम सरकारी संपत्तियों का नुकसान करेंगे तो हमें भी हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड करवाया गया है उसके अंतर्गत क्या होगा कि अगर हम किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर देश विरोधी कोई भी ऐसे कार्य कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होता, और ड्यूरिंग द, अगर किसी भी प्रकार की ट्रेजेडी हमारे देश के ऊपर आ जा रही है, राष्ट्रीय आपदा आ जा रही है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको सरकार हमसे छीन लेती है। स्टूडेंट्स, इन अ डेमोक्रेसी देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ इक्वालिटी। इन अ डेमोक्रेसी, स्टूडेंट्स, द लास्ट टॉपिक, इन अ डेमोक्रेसी, in a democracy, students, there is continuous expansions, there is continuous expansion expansions of equality, of equality। स्टूडेंट्स, अगर हम सिविक्स के बुक की तरफ देखें तो हम शुरुआत से देखते हैं कि एक्सपेंशन जो है हमारे इक्वालिटी में हो सकता है, हमें हर जगह इक्वालिटी की डिमांड करनी पड़ सकती है और इसका एक्सपेंशन पॉसिबल भी है। अगर हम देखें सिविक्स के बुक्स के अकॉर्डिंग तो देखेंगे कि पूरे बुक में हमें इनइक्वालिटी फेस करने को मिली है, चाहे वो हमें पॉलिटिकल बेस पर हमें वोट देने का अधिकार मिला हो, लेकिन जो और बहुमूल्य चीजें हैं उनको खरीदने का अधिकार, जैसे और सारी चीजें हैं जहां पर हमारे साथ समानता होनी चाहिए वहां पर वो अधिकार नहीं मिले हैं। मार्केट में हमने देखा कि हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, बट क्या हुआ कि जो प्रॉफिट है हम जो शॉपकीपर्स है उससे जो खरीद रहे हैं उसके बेस पर हमारी व्यवस्थाएं पूरी हो रही हैं, लेकिन हमसे ज्यादा प्रॉफिट वो कर रहा है।
तो हम एक जगह से दूसरी जगह अगर देखें तो पूरे सिविक्स के चैप्टर में एक दूसरी जगह हमको क्या चाहिए, हमको एक्सपेंशन दिखता है कि अगर मार्केट में एक व्यक्ति को एक समान अधिकार है, एक व्यक्ति को 10 रुपए में कोई सामान मिल रहा है तो वो सामान हमको भी 10 रुपए में मिले। हमारे साथ समान व्यवहार होना चाहिए, किसी दूसरे के लिए दूसरी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी एक गलती के लिए किसी को कम पनिशमेंट मिल रही है और किसी को ज्यादा पनिशमेंट मिल रही है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनके कार्य व्यवहार को देखते हुए भी उस पर डिसीजन लिया जाना चाहिए। फिर अगर हम टोटल कंक्लूजन करें इस चैप्टर की, इस चैप्टर में जो टोटल कंक्लूजन है, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर्स तो एनसीईआरटी के हैं नहीं बच्चों, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा और ताकि आप सभी लोग उससे कंप्लीट कर सको। कंक्लूजन में अगर देखें तो हर जगह इनइक्वालिटी हमको पूरे सिविक्स के चैप्टर्स में देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा कि इक्वालिटी एक चैलेंज के रूप में आई हमारे सामने। किस रूप में आई? इक्वालिटी केम एज ए चैलेंज। हर जगह समानता जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारे पास एक चैलेंज के रूप में आई, जिसके अगेंस्ट में क्या हुआ, स्ट्रगल्स हुए, मूवमेंट हुए। तो कंक्लूजन में हमको देखने को जो मिल रहा है इस चैप्टर में, सिविक्स के इस चैप्टर में, उसमें क्या हो रहा है, इक्वालिटी कम्स एज अ चैलेंज टू अस। हम हर जगह देख रहे हैं कि इक्वालिटी जो है एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है। इसका इंपैक्ट सोसाइटी पर क्या हुआ, इंपैक्ट में क्या हुआ कि एक गैपिंग बनना चालू हुई। अगर जहां पर समानता नहीं होगी, समानता तो हो ही नहीं सकती सोसाइटी में, समान व्यवहार नहीं हो सकता सोसाइटी में, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। एक दूसरे को समान अधिकार तो मिल सकते हैं, लेकिन हर जगह समानता को पॉसिबल करना ये संभव नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में अगर देखें तो हमें सारे राइट्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसका कहीं पर भी कोई उन्मूलन ना हो, इस प्रकार से हम अपने इक्वलिटीज को रिमेन और मेंटेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो सिविक्स है आज कंप्लीट हुआ, और फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, उसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में जरूर डिस्कस करूंगा। और इसी के साथ नाउ आई एम गोइंग टू इन माय सेशन हियर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।